Hello students, welcome to the world of physics, and our today's topic is derivation of equations of motion by calculus method. Actually student, इससे पहली वीडियो में हमने स्टडी किया था derivation of equations of motion by the graphical method, बट आज हम करने वाले हैं derivation by using calculus method. आप calculus method को by integral method भी बोल सकते हो because we will use integration. Now derivation of equations of motion by calculus method. Okay, as we know there are three equations of motions: v is equal to u plus at, which is first equations, and first of all we will derive the first equation. और हमें कंसीडर करना होगा ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन with uniform acceleration. It is the required condition for the derivation of the equations. So first equation, which is v is equal to u plus at, जो हमें derive करनी है. So first of all let us consider an object which is moving along a straight line. Let us consider an object moving along a straight line with uniform acceleration a. Okay students, object is moving in a straight line with uniform acceleration a. Let u is the initial velocity. Initially the object is moving with velocity u. जब हमने नोटिस करना स्टार्ट किया, let u is the initial velocity of the object. Initially means when the time was zero, that is जब हमने टाइम को जीरो कंसीडर किया है, that is at instant t equal to 0, that is initially. And after time t टाइम के बाद ये जो velocity है वो v हो जाती है, and v is the velocity at a later instant t, that is t टाइम के अंदर उसकी velocity में change आ गया, वो u से v हो जाती है. at a later instant t, that is t टाइम में उसकी velocity में change आ गया, वो u से v बन गई. Let us suppose dv is the small change in velocity. इससे आगे थोड़ा और चेंज आया, थोड़ा और टाइम पास होने के बाद. Let's suppose dv is the small change in velocity in small time interval dt. Okay students, तो क्या हुआ, dv change आया velocity में dt टाइम के अंदर. Then what will be its acceleration? Then acceleration, which is change in velocity upon time, which will be a change in velocity dv upon time dt. Now by the cross multiply, if we consider a is equal to dv by dt, cross multiply say dv into 1, which is dv a into dt, this one. This is the condition. Now we have to integrate them. अब हमें इन्हें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा within the condition of motion, because you know we have a calculus method, we have to solve it by the calculus method, that is we are using integration. Now integrate it within the condition of motion. Now what is the meaning of condition of motion? हमें कंडीशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग ही इंटीग्रेशन करना है. एक्चुअली कंडीशन ऑफ मोशन का मतलब है कि जब हमने पॉइंट आउट करना स्टार्ट किया तो उस समय टाइम कितना था. यहाँ अगर मैं इक्वेशन को देखूँ कंडीशन के अकॉर्डिंग, यहाँ दो वेरिएबल्स हैं, एक है वेलोसिटी और एक है टाइम. तो ये दो चीज़ें ही वेरिएबल हैं. तो हमें एक कंडीशन लगानी होगी कि जब टाइम की वैल्यू कम थी, इनिशियल थी, तो सपोज वो 0 थी, तो उस समय में वेलोसिटी की वैल्यू क्या थी, उस समय में इनिशियल वेलोसिटी u थी. और जब टाइम की वैल्यू जो कि वेरिएबल है
ए तो कांस्टेंट है, वो टी हो गया, तो उस समय में जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, वो v होगी। दैट इज द कंडीशन ऑफ मोशन। यू नो, ये कंडीशंस ऑफ मोशंस है, हमें इसी कंडीशन के अंडर ही इंटीग्रेशन करना है। नाउ एज यू नो द इंटीग्रेशन ऑफ dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, v। नाउ लोअर लिमिट अपर लिमिट, ऑल्सो ए इज कांस्टेंट, इसे बाहर निकाल सकते हो, आप इसे ऐसे लिख सकते हो dt 0 से t। तो dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, इट विल बी t 0 से t। ओके स्टूडेंट्स, और साथ में आ जाएगा बाहर a। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यहाँ पर a हमारे पास था, a लिख दिया। नाउ अगेन टाइम की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट विच इज 0, लोअर लिमिट 0। दिस इज द कंडीशन। नाउ v विल बी v माइनस u इज इक्वल 80 और v इज इक्वल u प्लस 80। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके स्टूडेंट, दिस इज द डेरिवेशन of first equation of motion by the calculus method. This is the first equation. Very simple method. Now the second equation. Now the second equation. Second equation की बात करते हैं. How can you derive? Condition is same. Same object is moving along the straight line with uniform acceleration a. Okay students, condition is same as in the first equation. Conditions वही लेनी है, उसमें कोई change नहीं है. Let us consider an object. Let us consider an object moving along a straight line. Moving along a straight line with uniform acceleration. With uniform acceleration small a. Okay students. Now कुछ टाइम t के अंदर, लेट एट एनी टाइम t स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, थोड़े से टाइम के अंदर, एट एनी इंस्टेंट। हमने कैलकुलेशन की, उस समय हमने मेजर किया कि जब किसी टाइम पर ds इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन small time interval dt, small time interval dt। हमने किसी समय ये जज किया कि जैसे ही थोड़ा सा टाइम इंक्रीज हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा चेंज आ रहा है, दैट इज ds। then what will be the velocity? As you know, velocity is the displacement upon time, so velocity v will be ds upon dt. This is the formula. Again बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ds को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और v को dt से, तो हमारे पास वैल्यू बनेगी ds इज इक्वल v dt। नाउ व्हाट इज v? वी नो द फर्स्ट इक्वेशन। फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन हम यहाँ से v की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल u प्लस 80, v इज इक्वल u प्लस 80, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं। और ds which is u plus 80 into dt। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, u dt प्लस at dt। दिस इज। नाउ अब हमें क्या करना है, हमें इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करना है विद इन द कंडीशन ऑफ मोशन। अगेन सेम केस, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ मोशन? यू नो वेरी वेल। नाउ हमें जो वेरिएबल्स हैं उनकी एक लिमिट फिक्स करनी है कि वो हमें किस लिमिट के अंदर इंटीग्रेट करना है। तो कंडीशन ऑफ मोशन इसे बोलेंगे, इंटीग्रेट इट विद इन दी कंडीशन ऑफ मोशन। नाउ कंडीशन ऑफ मोशन, डिस्प्लेसमेंट और टाइम, दैट इज कंडीशन ऑफ मोशन। नाउ इंटीग्रेट करते हैं इसे, ds u dt, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट को देखते हुए v इज इनिशियल विच इज फिक्स, u इंटीग्रेशन dt, a इज कांस्टेंट, a t into dt। नाउ व्हेन द टाइम इज 0, कंडीशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जब टाइम 0 था, स्टार्टिंग था 0, उस समय में दूसरा वेरिएबल यहाँ हम डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं,
डिस्प्लेसमेंट कितना था, 0, क्योंकि हमने जिस टाइम पे उसे कैलकुलेट करना शुरू किया उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट था ही नहीं, t टाइम पे कैलकुलेट किया था, t हो गया तो डिस्प्लेसमेंट s हो गया। दैट इज द कंडीशन ऑफ मोशन। अब अगर इसे मैं इंटीग्रेट करूं तो ds का इंटीग्रेशन आएगा s, नाउ द लोअर लिमिट अपर लिमिट, एंड u dt का इंटीग्रेशन आएगा t, लोअर लिमिट अपर लिमिट, प्लस a t का इंटीग्रेशन आएगा t²/2। स्टूडेंट्स आपको इंटीग्रेशन पता है क्योंकि हम पावर में एक ऐड कर देते हैं, उससे डिवाइड कर देते हैं 0 से t। नाउ पुटिंग द लिमिट्स s - 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अगेन u अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0, t - 0 प्लस a, नाउ अगेन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t²/2 minus 0 now, or you can write as s is equal s minus 0 s u t minus 0 t ut plus 1/2 हम पहले निकाल लेते हैं, 1/2 a t square. This is the derivation of second equation of motion by the calculus method. This is the second equation. We derive it by the calculus. Now the third equation, condition is same again. Third equation, let us consider an object is moving along a straight line with uniform acceleration. Object सेम वही कंडीशन से मूव कर रहा है क्योंकि these are the required conditions, ये फॉलो होनी चाहिए। Let us consider an object moving along a straight line with uniform acceleration a, स्मॉल a से डिनोट कर देते हैं। देन अगेन एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला रहेगा, एक्सेलरेशन विल बी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, dv अपॉन dt। नाउ अगर मैं थर्ड इक्वेशन को ध्यान से देखूं, थर्ड इक्वेशन में बनाना चाहता हूं और थर्ड इक्वेशन होती है v² - u² = 2as। अगर हम यहाँ पर लिखें थर्ड इक्वेशन v² - u² = 2as, यहाँ पर हम फॉर्मूले में v देख रहे हैं, v है मतलब वेलोसिटी की लिमिट है, हमारे पास एक्सेलरेशन भी है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो हम फॉर्मूले में पहले डिस्प्लेसमेंट लाएंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ इस फॉर्मूले में इस dv/dt को ds से मल्टीप्लाई करेंगे और ds से ही डिवाइड करेंगे, ds/ds, डिस्प्लेसमेंट से ही मल्टीप्लाई किया, डिस्प्लेसमेंट से ही डिवाइड किया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब इसे हम इंटरचेंज कर देते हैं, इसे इंटरचेंज करेंगे तो देखो किस तरह से लिखा जा सकता है, dt की जगह ds लिख देते हैं और ds की जगह dt लिख देते हैं। नाउ dv/ds इधर आ जाएगा, हम रेड से ही शो कर देते हैं दिस वन, और ऊपर ds है डिवाइड, जो dt है वो ds की जगह आ जाएगा दिस वन, इसको रिप्लेस करते हैं दिस वन। नाउ अब हमने जो मल्टीप्लाई डिवाइड किया हमने उसे इंटरचेंज किया इस तरह से। अब यहाँ कुछ फॉर्मूला बन सकता है, यू नो dv/ds तो कोई फॉर्मूला नहीं है, dv/ds तो ऐसे लिखा जा सकता है, बट ds/dt है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, इट इज वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब क्या कर सकते हैं, अब इसे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो किस तरह से किया जा सकता है, अगर एक नीचे 1 कंसीडर कर लिया जाए तो v dv को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास v dv ही आएगा, v dv, और a को ds से मल्टीप्लाई करेंगे, a ds आएगा। दिस इज द इक्वेशन। नाउ इंटीग्रेट इट विद इन द कंडीशन ऑफ मोशन। अगेन अब हमें पता है कंडीशन ऑफ मोशन क्या है, हमें लिमिट सेट करनी है। नाउ इंटीग्रेट इट विद इन द कंडीशन ऑफ मोशन, विद इन द कंडीशन ऑफ मोशन। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द कंडीशन ऑफ मोशन। देखो यहाँ वेरिएबल दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक वेलोसिटी नज़र आ रही है और एक डिस्प्लेसमेंट, तो कंडीशन ऑफ मोशन इन्हीं पे लगेगा। तो v dv पूरे का इंटीग्रेशन होगा, a कांस्टेंट है,
ds। अब डिस्प्लेसमेंट जब ज़ीरो था, जिस समय में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो था, उसमें वेलोसिटी की वैल्यू कितनी थी? उसमें वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी थी जो कि u से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जब डिस्प्लेसमेंट s हो गया तो वेलोसिटी भी फाइनल हो गई, विच विल बी v। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हमें इंटीग्रेशन करना है v dv का। एज यू नो, इसकी पावर में एक ऐड हो जाएगा, v²/2 आ जाएगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट। इसी तरह a ds का इंटीग्रेशन s आ जाएगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, v²/2 अपर लिमिट पुट किया, माइनस u²/2 लोअर लिमिट a, s -0 नाउ यहाँ से एलसीएम लिया जा सकता है, v² - u²/2 a इंटू s। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसे तो v² - u² = 2as। This is the required equation of motion, which is the third equation of motion, and this is the derivation of the equation of motion third by the calculus method. Okay students, now इस कंसेप्ट के साथ मैं एक कंसेप्ट और ऐड करना चाहता हूँ। एक और कंसेप्ट है, अगर ये इक्वेशंस ऑफ मोशन हम ग्रेविटी के लिए लिखना चाहें, फॉर द ग्रेविटेशनल मोशन। एक्चुअली ग्रेविटेशनल मोशन क्या होता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के वजह से टुवर्ड द अर्थ और अवे फ्रॉम द अर्थ मूव करना चाहे तो उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल मोशन। यहाँ पर एक्सेलेरेशन वो एक्सेलेरेशन नहीं है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं बाय द फोर्स, यहाँ एक्सेलेरेशन ग्रेविटी प्रोवाइड करेगी। ग्रेविटी की वजह से ही ऑब्जेक्ट मूव करेगा। हम फोर्स अप्लाई करेंगे बट ग्रेविटी उसे मूव करेंगे। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट हम समझेंगे, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही अपना एक्सेलेरेशन अप्लाई करेगी, दैट इज g। और g की वैल्यू हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो एक्सेलेरेशन ग्रेविटी ने लगाना है, हमने नहीं लगाना है। तो ग्रेविटी की वजह से जो मोशन हो रहा है दैट इज द ग्रेविटी, that is called the gravitational motion. Now the motion of objects falling towards the earth or away from the earth, you can say thrown away from the earth, is called gravitational motion, इसे आप ग्रेविटेशनल मोशन बोलते हैं, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी की वजह से है। ओके स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं जो मोशन है वो टुवर्ड्स द अर्थ है और अवे फ्रॉम द अर्थ है। इफ इन दी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस, जो हमने 3 इक्वेशंस स्टडी की हैं, इन दी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हम रिप्लेस कर दें एक्सेलेरेशन a को g से। तो क्योंकि यहाँ एक्सेलेरेशन हम प्रोवाइड नहीं कर रहे, ग्रेविटी प्रोवाइड कर रही है, a को g से रिप्लेस कर दें। एंड क्योंकि बॉडी को या तो अवे फ्रॉम अर्थ जाना है या टुवर्ड अर्थ, तो वहाँ कहीं ना कहीं हम हाइट की बात कर रहे हैं, s को h से रिप्लेस कर देंगे। अगर इन दोनों को रिप्लेस कर दिया जाए तो हमारी जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो चेंज हो जाती है। We shall get equations for the objects. We shall get equations for the objects falling towards earth or away from the earth. Towards earth or thrown away from the earth. और 3 इक्वेशंस कौन कौन सी हैं? सबसे पहले फॉलिंग टुवर्ड द अर्थ और अवे फ्रॉम द अर्थ, जब ऑब्जेक्ट जा रहा है उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल मोशन। इफ इन द इक्वेशंस ऑफ मोशन वी रिप्लेस a by g and s by h, then we get equations। कौन कौन सी इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ? फर्स्ट इक्वेशन हमने क्या लिखी थी? हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी v = u + at, और इसे रिप्लेस किया जा सकता है चेंज करके। कैसे आएगी? हमने कहा था
v इज इक्वल u प्लस a को रिप्लेस करना है g से, डेट इज gt, a को g से रिप्लेस कर दिया। सेकेंड इक्वेशन थी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, नाउ हमें रिप्लेस करना है s को h से, s को h से रिप्लेस करना है, h ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, gt स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। Now v square minus u square is equal to 2as. Now the equation will become v square minus u square 2gh. These are the equations of motion under gravity. ये gravity की वजह से हमारे पास equations आती है। Okay students, these are the equations of motion under gravity. Okay, now बात करते हैं हम सुपर्ब की पॉइंट। एंड यू नो सुपर्ब की पॉइंट जो होते हैं एस के पॉइंट, ये हमारी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे। इनमें कंसेप्ट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो कर रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड, मतलब अवे फ्रॉम द अर्थ, तो जो जी लगाई जा रही है, अर्थ जो जी लगा रहा है वो माइनस जी से रिप्लेस हो जाती है, क्योंकि आप अवे फ्रॉम द अर्थ जा रहे हो, अर्थ की ग्रेविटी के अपोजिट काम कर रहे हो। इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड दैट इज अवे फ्रॉम द अर्थ, आपने ग्रेविटी के अपोजिट काम किया है, अवे फ्रॉम अर्थ, then we shall substitute minus g. हमें माइनस जी लगाना पड़ेगा in place of पॉजिटिव जी। जहां पर भी जी है वहां माइनस जी आ जाएगा इन दी अबव इक्वेशंस, जितनी भी हमने इक्वेशंस की बात की है जो कि अंडर ग्रेविटी है। ये जी इसकी जगह माइनस जी आ जाएगा, ये वाला, तो ये जी इसकी जगह माइनस जी आ जाएगा, ये जी इसकी जगह माइनस। कब? जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे वर्टिकली अपवर्ड। ओके स्टूडेंट्स, हमें वर्टिकली अपवर्ड उस समय में कंसेप्ट याद रखना है, तो जी को माइनस जी से हमें रिप्लेस कर देना है। दिस इज द कंसेप्ट, दीज आर द एस्केप पॉइंट्स, दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। सो स्टूडेंट्स, हमने आज इक्वेशंस को डिराइव किया बाय द कैलकुलस मेथड। दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम CBSE and competitive point of view. Thank you very much.